and it appears with two different codes in our scheme of studies. One of them is CSD and the other one is CSC, so I have put them both. तो आपके scheme of study में जौन सा भी ये code होगा आप उसको use करेंगे. A little bit introduction about myself. As I told you, my name is Dr.Usama Bajwa, and I have been associated with ComSets since last probably 18 years. Initially, I taught in ComSets Ahmedabad campus, and then since 2015, I am here at Lahore. आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? Yes sir, आ रही है. Okay. So मैं इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग अगर इसको रिवाइज करना चाहें और आइंदा भी हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे. So ये मेरे ईमेल आईडीज हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लें. कोशिश करेंगे सिर्फ पहले वाले ईमेल आईडी पर ही जो यूनिवर्सिटी का है उसी पर मुझे ईमेल करें इन केस यू हैव एनी इशू. I've done my PhD, which was the topic of my PhD was basically relevant to biometrics and specifically face recognition. तो मैं थोड़ा सा इसमें से अपने इंट्रो में से थोड़ा स्पीड से गुजर जाऊंगा ताकि हम टाइम ज़ाया इसमें ना करें. मेरे रिसर्च एक्सपीरियंस में it includes being a team lead of a funded project by the government, and it was based on biometric identification for large-scale systems, like multi-million matches per second, like on the scale of NADRA. So we were actually the team which introduced the smart card, match on card thing, which was then in 2008 adopted by NADRA on the ID card, but it's still not being used. जो chip आपको नजर आती है उस ID card के ऊपर, the concept of that chip was given by us, and I founded a company named Technology Nucleus along with some colleagues of mine, and I have been part of medical imaging research unit at University of South Wales in UK, where we worked on infrared images. In Technology Nucleus Private Limited, we worked on many interesting things ranging from biometrics to onboard diagnostics of cars, EFI cars, to fingerprint verification computations, to video encoders, and etc. And currently, I'm having these two research fundings. One of them is worth 43 million from Government of Pakistan. And I am part of this project as a co-principal investigator. And it's currently running. This project is currently running. And then I have been able, along with my students, my FIP students, to secure fundings for their FIPs from Ignite. And the plan you already people know is NGIRI, which is National Grassroots Initiative Research Support something program. And recently we have secured 2 more fundings, alhamdulillah, and those FYPs are in progress. Relevant to my supervisions, I have and I am supervising different topics, PG topics ranging from detection and classification of brain tumor, video forgery, smoke and fire detection, again brain tumor image segmentation, facial asymmetry, and then 3D facial recognition based on pose and expression. And in MS, again, I have done and currently doing work on facial emotion recognition, super resolution, and we will learn what these terms mean during this course. I have worked with the reconstruction of scene using corneal reflection, the reflection of image which is made on the eye by looking into the eye, into the image of the eye. You can generate the image of the area which the person is looking at. So something like that. और इसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा. हमारे पास एक लिंक है मेरे रिसर्च ग्रुप का जिस पे जाके आप इन चीज़ों को मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं. And all these topics. I have done some publications ranging from journal publications, conference publications, and I have been heading these events for last few years. The topmost of them is a conference, which is an IT conference, and ComSets has been holding this conference since 2002. And I have been involved with this conference since 2010. And I have been heading this conference since 2013. And then you may have heard of Park China Business Forum, etc. And then this was very interesting, although it doesn't relate to
image processing, but that was something fun, which was Simon. And I have also been involved with Intel Science Fair, which was a very successful event. So this was all about myself. Few FYP supervisions which I have listed here, and the purpose of listing them here was to just give you an example कि हम लोग image processing based FYPs भी करते हैं और इसके अलावा भी करते हैं, and alhamdulillah we have been successful. मैंने कुछ यहाँ पे selective projects यहाँ पे list down किए हैं which range from projects which have secured fundings by different sources, research groups who have published conference papers, research groups which have been shortlisted for different competitions, and recently we won this All Pakistan DICE competition, and this project also got third position in FYPs, and we have this important project which was an FYP, and ultimately it got converted into a company. So initially it was inducted in Plan 9, incubated in Plan 9, and then currently now it's going under supervision in Plan X. So we are having high hopes for this one. Now it has become a company named Agri-Asan, and initially it was a FYP project named as Wheat Guard. So that was all about me, my students. So starting for this course, as I said earlier, you can use my email ID, which is the official email ID. This is for communicating any issue relevant to the course. However, for assignments and other stuff, I will give you another email address जो कि assignment की statement में लिखा होगा. ये मेरे ग्रुप का रिसर्च ग्रुप का एक लिंक है, इसको आप विजिट करके देख सकते हैं. डिफरेंट टॉपिक्स इन पे हम काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, और ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ ये आगे कुछ स्लाइड्स के बाद में नजर आएगा. Regarding the textbooks to be used in this course, the first one of them is this book, which is Digital Image Processing by Gonzalez. It's a very famous book being taught all over the world, and if you intend to do your FYP in future in this field, or you intend to work in this field, this is something which should be part of your library in hard copy. It should be part of your library. It's so important. And then there is a companion book of this textbook. The benefit of having this companion book is कि ये हर वो टॉपिक जो कि उस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, ये उसका मैटलैब का कोड, उसकी प्रोग्रामिंग सारी की सारी लिस्ट डाउन करता है. So if you have this pair of books, I can bet that you can solve any problem which is relevant to this domain. And thirdly, we'll be having our class slides. और हर दफ़ा लोग धोखा खा जाते हैं कि ये क्लास स्लाइड जो हैं they are not enough to prepare for this course. कि अगर आप जो evaluations होती हैं उनको prepare करने के लिए ये समझें कि स्लाइड्स काफ़ी हैं, they are not. These slides are meant for me कि मैं आपको किसी चीज़ को कम से कम वक्त में एक्सप्लेन कर सकूं, और आपके लिए इनका मकसद जो है वो जस्ट एक इंडेक्स है कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े. तो मेरे पास कुछ स्कैन रिसोर्सेज या डिजिटल बुक शायद हो, मैं वो सीआर के साथ शेयर कर दूंगा, वो आप तक पहुंचा देंगे, बट ट्राई टू गेट देम इशूड फ्रॉम द लाइब्रेरी और बाय देम. एंड बाय द वे ये आपको लो प्राइस एडिशन में भी ये बुक्स मिल जाएंगी, इनको आप खरीद सकते हैं. आल्दो ये दोनों बुक्स बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बट अगर किसी को इशू आ रहा हो तो मैं एक एडिशनल बुक आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ. इसको आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, इसकी ई कॉपी मेरे पास पड़ी है, एंड दिस इज बाय होगी मार्किस. और उसने किया सिर्फ ये है कि इन दोनों बुक्स को कंबाइन कर दिया. वो साथ साथ उसकी थ्योरी बताता है, साथ साथ उसकी एग्जांपल कोड एक्सप्लेन करता जाता है. तो इन केस अगर आपको जरूरत पड़े, जो कि नॉर्मली इन दो किताबों के बाद इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मैं ये बुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. और बाय द वे आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे मुझे रोक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज आई लव दिस कोर्स टू बी मोर इंटरेक्टिव. अगर ये कोर्स मैं ही बोलता जाऊंगा तो मेरे लिए ये कोर्स बहुत बोर होगा.
कोई चीज समझ नहीं आ रही, यू कैन ऑलवेज आस्क मी अ क्वेश्चन, से योर नेम एंड आस्क मी द क्वेश्चन। ओके, बाकी आप लोगों को अपना सीईओ ऑनलाइन पेज टाइमली चेक करते रहना होगा। ग्रेडिंग पॉलिसी ऑलरेडी डिफाइंड थी। यस ऑफ कोर्स पिछले सेमेस्टर में इसके अंदर कुछ चेंजेस आई बिकॉज ऑफ कोविड। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए स्टिल वही पुराने प्लान है जो कोविड से पहले थे। अब इसलिए मैंने यहाँ भी ये नहीं लिखा कि इन केस अगर इसके अंदर कोई चेंज आई तो वो नोटिफाई हो जाएगी, आप तक पहुंचा दी जाएगी। सो फार जो मुझे पता लगा है वो ये है कि एग्जाम आपके फिजिकल होंगे। This is so far, but it's not confirmed, not written, not in any notification from me. Coming to the course objectives, हमारे किसी भी काम करने का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमारे आने का एक ऑब्जेक्टिव है दुनिया में, हमारे इस डिग्री करने का कोई ऑब्जेक्टिव है। सिमिलरली इस कोर्स के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, and inshallah we will try to meet these objectives by the end of the class. And the first one of them is to give you guys a thorough understanding of advanced tools, algorithms and techniques used in image processing, number one. Number two, to enable you people to be able to solve an image processing problem and to design it on your own. And how we'll be achieving this target by giving you working experience on image processing tools. And that I will do through assignments and project. And number three, the last one is to introduce some advanced topics in image processing to invoke interest for doing research in this field. So it can be interesting for you. You can do your FYP in it, or you can choose it as your domain in MS, or you can choose it as your domain for work. So these are all the course objectives which I will be targeting, which actually we will be targeting inshallah during this course. There are some prerequisites, but they are not hard prerequisites. Number one, you people should be able to recall basic knowledge of probability and random variables. You have already been through these course contents. Basic concepts of linear algebra, vectors, matrices, ये सब कुछ आप लोगों को इंट्रो की हद तक याद होना चाहिए। अगर सपोज आपको नहीं याद तो इसके लिए भी मैंने एक PDF फाइल डाउनलोड की हुई है which is almost 22 pages, और वो एक तरह का बेसिक सा क्रैश कोर्स है कि आपको वो तमाम चीज़ें याद आ जाएं जो आप ऑलरेडी बेसिकली पढ़ चुके हुए हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। उसके अंदर ये बेसिक इंफॉर्मेशन सारी, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ब्ला ब्ला, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर गिवन है, और आप में से अक्सर को ऑलरेडी ये चीज़ें याद होंगी। The second prereq was basically working knowledge of MATLAB, but it's not mandatory because MATLAB is really a very simple tool. So programming की basics आप लोगों को already आती हैं। आप लोगों ने माशाल्लाह से डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ा हुआ है। सो आप लोगों के पास किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उसके एल्गोरिथम बनाने तक का नॉलेज जो है वो आपके जहन में है, और जिसके पास ये सारा नॉलेज जहन में हो उसके लिए कोई भी टूल जो है वो मुश्किल नहीं होता। All you need to do is you need to remember probably or get used to with new function names, with new toolboxes. That's it. Basic programming practices वही सारी की सारी यूज होती हैं। And believe me, this language is so simple कि मैंने इसको अपने MS और PhD के दौरान सिर्फ गूगल से ही सीखा था, और मैं उसके साथ अपना बेसिक काम पूरी PhD का उसका मैंने कर लिया था। So कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, and you people will agree once you install it and once you start using it. जब मैं आपको कुछ to do work दूंगा और आप उस पर जाके करेंगे, you will agree with what I said. And as a programmer we already know कि हमें कोई भी जब काम मिलता है कोडिंग के लिए, हमारी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि हम स्ट्रेट अवे जाके सिस्टम पे बैठ जाएं और किसी भी टूल में C शार्प में, जावा में, मैटलैब में उसकी कोडिंग स्टार्ट कर दें। उससे पहले ज़रूरी होता है कि हम उसका कोई एक ब्रेक डाउन बना लें, और अगर हमें किसी को वो चीज़ दिखानी है, किसी से अप्रूवल लेनी है, तो हम उसको एल्गोरिथम के लेवल तक लेके जा सकते हैं, अदरवाइज हम उसका पूरे का पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं।
एंड देन वी सिट फॉर कोडिंग, ताकि हमारा दिमाग जो है वो एक टाइम पे दो बातें ना सोच रहा हो। तो एक दफ़ा हम उसकी माइंड मैपिंग करके उसके डाटा स्ट्रक्चर्स की सिलेक्शन से लेके उसके फ्लो से लेके सारा कुछ पेपर पे बना लेते हैं और फिर बैठते हैं कोडिंग करने। तो उस वक्त हमारा कंसर्न सिर्फ इस चीज़ से होता है, अच्छा यार ये नई लैंग्वेज है मैटलैब, इसके अंदर अगर मैंने इमेज को रीड करना है तो कैसे करना है, गूगल करके देख लेना है, अगर मैंने इसको डिस्प्ले करना है तो कैसे करना है। बाकी साइंस प्रोग्रामिंग की वही है जो हम पढ़ चुके हैं, वही स्ट्रक्चर्स हैं रेपिटेशन के लिए, वही सब कुछ है। अब थोड़ी खौफनाक चीजें स्टार्ट हो रही हैं जिनके अंदर आपकी असाइनमेंट्स होंगी, तो प्लीज कीप चेकिंग योर सीओ ऑनलाइन सिस्टम। कोशिश तो ये करूंगा कि मैं इस पेज पे भी साथ साथ अपडेट करूं, दोनों जगह पे कर दूं। अगर आप सारे के सारे लोग जो है यहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अपडेटेड रखूं इस क्लास के पेज को। असाइनमेंट जो है वो आपकी रिटर्न असाइनमेंट भी हो सकती है, मोस्टली प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स होंगी, और इसकी मजबूरी ये है कि चूंकि इस कोर्स के साथ लैब नहीं है और बगैर लैब के ये कोर्स किसी काम का नहीं है, तो इसको हमने कवर करना है प्रोग्रामिंग से। तरीकाकार ये होता है कि हर असाइनमेंट के साथ उसकी डेडलाइन दे दी जाती है और उस डेडलाइन के बाद असाइनमेंट सबमिशन पे कोई मार्क्स नहीं मिलते। और ये बड़ा क्लियर है, ये एक ऐसा रूल है जिससे किसी एक आधे को शायद बहुत किसी टाइम पे तकलीफ हो, लेकिन जनरली बाकी सारे के सारों की जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है मेरे समेत। और ये भी बड़ा क्लियर है कि चीटेड असाइनमेंट्स जो हैं दे विल गेट 0 मार्क्स। तो अक्सर लोगों को जिनको मैं पढ़ाता रहा हूँ, दे अंडरस्टूड दीज थिंग्स। इशू हुआ पिछले सेमेस्टर में, सिर्फ पिछले सेमेस्टर में चूंकि बच्चे अभी स्टार्ट में आए थे, दे डिडंट नो अबाउट मी, और शायद उन तक मेरी ये आदतें पहुंच नहीं सकी, सो ग्रेड्स थोड़े से डिस्टर्ब हुए जस्ट बिकॉज ऑफ दीज लास्ट 2 पॉइंट्स। सो एज फार एज यू आर कोडिंग योरसेल्फ, चाहे आपको आधे नंबर मिले वो आपके अपने होंगे, आपने असाइनमेंट पूरी की है, किसी से कॉपी की है, दोनों के वो 0 होंगे। ये बड़ा क्लियर है। प्लेजरिज्म पे कोई माफी नहीं है, आप अपनी हिम्मत लगाओ, आप डिस्कस करो, लेकिन अपनी लिखी हुई चीज, अपनी की हुई चीज ही आपने सबमिट करवानी है। We will try to have a project, because आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाओगे, first question they will ask you what sort of projects you have done, and if you tell them कि FYP के मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, that would be a very strange thing for them. So every subject has a subject project, जिसके अंदर आप सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से एक तरह से इम्प्लीमेंट करते हो, मजीद सीखते हो, उन चीज़ों को सीखते हो प्रॉब्ली जो कि उस सब्जेक्ट में कवर भी नहीं है। So we will decide how much weight a project will be given in the total marks. It can be converted into the form of assignments. It can be even compensated in the final marks. So a project can be conducted in a group of 2 or 3 maximum. So different suggested topics will be shared. I will try to share them by the end of this week, inshallah. And if you have your own idea for a project, मुझे वो बहुत पसंद होगा, लेकिन उसके लिए आपने पहले मुझसे डिस्कस करना है और मुझसे अप्रूवल लेनी है, and you have to do that ASAP. Then we'll be assigning these project presentation dates, अनाउंस कर देंगे, और presentation date के बाद अगेन वही रूल यहाँ पे भी लागू होता है कि जो हमने डेट रखी है उसी पे हमने उसको प्रेजेंट करना है, उसी पे हमने उसको डिस्कस करना है, उससे बाद नहीं। और अगेन अगर आप डाउनलोड किया हुआ कोड मुझे वर्ड में दिखा दोगे या डाउनलोडेड प्रेजेंटेशंस दिखा दोगे तो उनका मार्क 0 होगा। एंड बाय द वे, ये सारी डरावनी बातें करने के बाद मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स के अंदर लोगों के बहुत अच्छे ग्रेड रहे हैं, एक्सेप्ट लास्ट सेमेस्टर, बिकॉज दे डिडंट रियलाइज इट एट द टाइम। एक्सेप्ट लास्ट सेमेस्टर बड़े अच्छे लोगों के ग्रेड गए। ओके, सो ये पहली अच्छी बात। इस डिवाइस से प्रॉब्ली आप बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे। रास्पबेरी पाई बेसिकली एक छोटा सा कंप्यूटर है। मकसद क्या है आप लोगों को भी दिखाने का, बताने का, हम कहते हैं कि ये IoT का दौर है। Can anybody tell me what is IoT? Information of things. Internet of things. Internet of things, exactly. Internet of things. So Internet of things का मतलब ये है that we are moving towards a time where
every device, be it a cooking range, and it's happening actually, or a fridge or a television, anything that would be connected to the internet. So which means all those devices need to be smart, and which means that we have to code for them. We have to put our intelligence within those smart things. लेकिन इन तमाम चीज़ों, ये जो तमाम इस तरह की चीज़ें हैं, there are some limitations for them. लिमिटेड मेमोरी के होते हुए, लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर के होते हुए हमें वो काम करना है. सो रास्पबेरी पाई इज अ वेरी गुड टूल टू स्टार्ट विथ, कि जिसपे हम बजाय ये जो नॉर्मल कोड लिखते हैं मशीन के ऊपर, खुली रैम हमारे पास अवेलेबल होती है, हमें कभी टेंशन नहीं होती कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने कभी मेमोरी मैनेजमेंट करनी नहीं सीखी होती, क्योंकि हमें टेंशन ही नहीं है. हमारे सिस्टम इस काबिल हैं कि वो हमारा कोड बुरा तरीन भी हो तो वो चल जाता है. अभी कोड बुरा तरीन होने का मतलब क्या है? नॉर्मली आप अपना कोड बनाने के बाद एक फेज में से उसे गुजारते हैं जिसका नाम ऑप्टिमाइजेशन है. उस ऑप्टिमाइजेशन में आप मेमोरी लीक्स देखते हैं, आप ये देखते हैं कहाँ पे आपकी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी आपकी उस लॉजिक की ज्यादा है, आप उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. तो सिस्टम की हद तक तो ठीक है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी डिवाइसेस पे वंस यू स्टार्ट राइटिंग योर सपोज इमेज प्रोसेसिंग कोड, देन इट नीड्स टू बी स्मार्ट, इट नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड. तो ये रास्पबेरी पाई का मकसद यहाँ बताने का सिर्फ ये था कि खुशी होगी अगर कोई अपने प्रोजेक्ट में यूज कर ले. ये कोई मतलब बहुत जरूरी नहीं है कि हर किसी ने इसी पे काम करना है, लेकिन अगर आप कर सको तो इट्स अ गुड इंटरफेस. इसके लिए विंडोज 10 iOS, विंडोज 10 IoT का ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है जिस पे चल सकता है, और इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बेहतर है जिसका नाम रास्पबियन है, और वो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ये मुकम्मल कंप्यूटर है जी जिसमें इसका प्रोसेसर है, लेकिन ये इसमें एक चीज़ जो डिफरेंट है कि इंटेल का आर्किटेक्चर नहीं है, आर्म बेस्ड प्रोसेसर है, ARM बेस्ड है, जिसकी वजह से अगर ये जो मैटलैब है, मैटलैब स्ट्रेट वे इसके ऊपर नहीं चलती, लेकिन जो मैटलैब का सिमुलिंक का टूल है वो इसके ऊपर रन होता है. लेकिन उसके लिए आप कोई ना कोई और तरीका यूज कर सकते हैं. इसका बताने का और मकसद क्या है मेरा, हम अपने FYPs में बहुत सारे FYPs अब ऐसे कर चुके हैं जो डीप लर्निंग को यूज करते हैं. लाइक हम लोगों ने काम किया जो सर्वेलेंस वीडियोस लेते हैं और फिर उन सर्वेलेंस वीडियोस में से इवेंट्स को डिटेक्ट करता है. एक ऐसा FYP था जो उसमें से इवेंट्स को डिटेक्ट करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, किसी सर्वेलेंस कैमरा में अगर कोई कहीं पे कोई लड़ाई हो रही है या एक्सीडेंट हो गया है, तो वो सिस्टम फौरन आपको अलर्ट कर देगा विद दैट स्पेसिफिक इंसिडेंट. या अगर आपने कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई चोरी हो गई है और आप 8 घंटे की वीडियो को एक ह्यूमन बीइंग पूरी वीडियो को बैठ के देखे एक सेकंड, वो ऑफलाइन वीडियो अगर उसको दे दे तो वो कोड उसमें से वो स्निपेट्स निकाल के विद टाइम टैग्स दे देता है कि इस टाइम पे ये एक्टिविटी हुई थी. अब हम ये चाह रहे हैं, जो अभी फिलहाल हम FYPs कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम वही डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स को मोबाइल्स पे पोर्ट कर सकें. फिलहाल वो नहीं हो रहे, आल्दो मोबाइल नेट हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम मोबाइल के ऊपर कुछ न्यूरल नेटवर्क्स जो है उनको रन कर सकें, लेकिन जो हमारे काम के डीप लर्निंग मॉडल हैं स्टिल वो कन्वर्ट नहीं हो रहे. तो हम एक प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्वेलिया के नाम से वो FYP है जिसने इस दफ़ा फंडिंग भी जीती है, उसमें हम ये कोशिश करेंगे किसी तरह से हम एक कंप्यूटेशनली इंटेंसिव मॉडल जो है उसको मोबाइल पे पोर्ट कर सकें या रास्पबेरी पाई पे पोर्ट कर सकें, ताकि वही काम जो एक सिस्टम पे होता था वो काम आप एक मोबाइल पे या रास्पबेरी पाई पे आ सके. तो ये बेसिक मकसद है इसको बताने के लिए. इस हवाले से कि रास्पबेरी पाई पे क्या क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ये नीचे जो लिंक दिया गया है raspberrypi.org, इस पे आपको बेतहाशा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे. और अगर आप सिंपली सर्च करें 100 प्रोजेक्ट्स यूजिंग रास्पबेरी पाई तो आपको बेतहाशा PDF फाइल्स ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर बहुत डिटेल से लोगों ने एक्सप्लेन किया. वो सारे के सारे इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड भी हैं. तो ये काफ़ी हद तक यूजफुल है हमें अच्छी चीज़ें सीखने में. Okay, let's start with the boring part of image processing, which is its history, how it started. So image processing started in the early 1920s, and the first applications, one of the first applications of digital imaging was the newspaper industry. So a Bartlane cable picture transmission service was initiated, and images were transferred through submarine cable
between London and New York to be published in newspaper. And the pictures were initially coded for cable transfer, and then they were reconstructed at the receiving end on a telegraph printer. So telegraph printer जो कि dots print करता था, that was initially used to print pictures, and initially it was coded and sent. And hopefully you guys know what is meant by coding some information. आप लोगों ने किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई ऐसी कोडिंग टेक्निक्स या मॉड्यूलेशंस आप लोगों ने शायद पढ़ी होंगी, पीएसके फेज शिफ्ट कीइंग पढ़ी होगी या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग या कुछ इस तरह के आप लोगों ने टॉपिक जरूर पढ़े होंगे, एंड यू उस टाइम पे आपके टीचर ने किसी ने शायद बताया भी हो कि आप इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन को कोड करके हाइड करके ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन या शायद किसी ने नेटवर्क्स में आपको शायद किसी ने पढ़ाया हो. And then we come to the next phase in history, which was mid to late 1920s. There were many improvements made to the Bartlane system, which resulted in higher quality images, because initially the telegraph either printed a dot or not. So actually there were only two colors. एक वो कलर जो टेलीग्राफ का प्रिंटर प्रिंट करता है या नहीं करता, तो दो कलर थे. उसके बाद नई रिप्रोडक्शन हुई बेस्ड ऑन फोटोग्राफिक टेक्निक्स, और पहली दफा एक 15 टोन, मतलब के 15 ग्रे लेवल्स, 15 कलर्स, उस जमाने के 15 कलर्स की बेस के ऊपर एक डिजिटल इमेज क्रिएट किया गया. और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ता गया कि हाउ कैन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टोन्स, द नंबर ऑफ कलर्स, द नंबर ऑफ ग्रे स्केल्स थ्रू व्हिच अ पिक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड. And in 1960s, huge improvements were made in computing technology, and the onset of the space race led to lots of work in digital image processing. So in 1964, computers were first time used to improve the quality of images. Images taken of the moon by the Ranger 7 probe, जो different को सियारे पहले भेजते थे, which had cameras on them, and then those images were transmitted back to the Earth and they were improved. And then such techniques were also used in other space missions like Apollo landings. So this is one of the images taken back in 1964 by the Ranger 7 probe. और एक recently बड़ा एक interesting article है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें BBC उर्दू पे, जो रेलिवेंट टू दो प्रोब मिशंस के हैं जो 1970s में और 60s में भेजे गए थे खला में, and they have been sending signals and photographs for the past 40-50 probably years. बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वो पढ़िएगा. And then in 1970s, digital image processing was started being used for medical applications. So in 1979, Sir Godfrey Hounsfield, he was given the title of Sir just because he discovered this new technique named as computerized axial tomography, CAT scans. और ये बेस बना आज की तमाम MRI, CT scans और इन तमाम टेक्निक्स का. So he won the Nobel Prize in medicine for that year along with Professor Alan Cormack for inventing this tomography technique. And since 1980s till date, the use of image processing techniques has exploded, and it is used for every kind of task, be it image enhancement or restoration, be it artistic effects, be it medical visualizations, be it industrial inspection, law enforcement agencies, human-computer interfaces, and a long list of that. So just to wake you up, can you people give me an example of what is meant by image enhancement or restoration? Asma Jameel. No, sir. इमेज एनहांसमेंट की कोई एग्जांपल ज़हन में नहीं आ रही आपके? अज़का. सर मुझे इमेज एनहांसमेंट का आइडिया तो नहीं, लेकिन शायद इसकी क्वालिटी को बेहतर करना. बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, एग्जैक्टली.
I'm just trying to make you people think. इसका हर किसी का मतलब नहीं है कि आपको ये चीजें ऑलरेडी आती हैं. So I just want to learn from you कि आपका क्या ख्याल है कि what actually image processing is. So you said it right. And Fahad Tariq said Photoshop software. Probably yes, Photoshop is also used for enhancement where you can make an image better for visibility of a human being. Na? So this is enhancement. Okay, good. Can anyone give me or name some medical visualizations? I have already told you one. Hamza छोड़ गया. Ehsan, Mohammed Ehsan. सर MIR बिल्कुल MRI आपने सही कहा. और कोई एग्जांपल? एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, ये भी इमेज ही आपको देते हैं. अभी इसका मुझे बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही. बिल्कुल सब सही बताया आपने. नूर आपने सही बताया. हम्बल कोई एग्जांपल और? जुबैर, उमर, आप लोग कनेक्ट करके कहीं चले गए हैं या आपको जवाब देना नहीं आता? अगर आपको जवाब देना नहीं आता तो आप माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं. सर सुन रहे हैं जी. उमर, अल्ट्रासाउंड यस. हम्बल बिल्कुल ठीक है. उमर यस. यस सर, यही एग्जांपल देने लगा था. ठीक हो गया बेटा. और इसी तरह इंडस्ट्री इंस्पेक्शन में कोई आइडिया है आपको? सर इंडस्ट्री इंस्पेक्शन में कैसे होता है? सर मशीनरी में सर कोई फॉल्ट आ जाए तो सर वो अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू इमेज बनाते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. ओके. लॉ एनफोर्समेंट की कोई एग्जांपल किसी के ज़हन में? सर जैसे कि फेस रिकग्निशन लॉ एनफोर्समेंट में आपके बायोमेट्रिक्स के थ्रू या किसी आपके किसी भी विजुअल बिल्कुल ठीक है बेटा. फेस इफेक्ट के थ्रू चेक करना कि क्रिमिनल है कि नहीं है. बिल्कुल ठीक हो गया. ये भी सही हो गया. बेहतरीन. And then we have those human computer interfaces, HCI, which we already know. So now next comes our question: why do we process images actually? Because the subject which we are going to study is digital image processing. So the question is, why do we need to process images? आप लोगों में से किसी को अगर फोटोग्राफी का शौक हो तो उसको शायद रॉ इमेजेस का पता होगा, या अगर ना भी हो तो बहुत सारे लोगों को शायद रॉ इमेजेस का पता होगा. जो आपका कैमरा पिक्चर खींचता है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इनिशियली दैट इज ह्यूज इंफॉर्मेशन एंड इट्स कॉल्ड अ रॉ इमेज. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हु लव टू डील विद रॉ इमेजेस एज कंपेयर टू द इमेजेस जो अल्टीमेटली हमारे पास हमारे मोबाइल में कैमकॉर्डर में सेव होते हैं with the extension JPG or JPEG or BMP or TIFF or anything else. So raw image is a very huge image with all the information which has been captured. Next comes image compression, जो उसको compress करके हमारे define किए गई resolution के अंदर save कर देता है और उसके आगे उसकी extension लग जाती है JPG या JPEG. तो ये कंप्रेशन है. हमें यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम सेव करते हुए कम से कम स्पेस यूज करें. सो दैट्स द रीजन व्हाई वी यूज्ड इमेज प्रोसेसिंग, प्रॉब्ली टू सेव डेटा स्टोरेज और टू हैव लेस डेटा फॉर ट्रांसमिशन. इसके बाद आपको सामने यहाँ पे एक मशीन नजर आ रही है जो कि MRI मशीन है. किसी ना किसी का इससे वास्ता पड़ा होगा. तो इसके अंदर तो कोई कैमरे नहीं लगे होते और कोई भी कैमरा ऐसा नहीं है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर देख सके. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. इसके अंदर मैग्नेट्स का एक पूरा सर्कल है और ये वो एक ऐसा फील्ड क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे बॉडी के जो भी स्कैन किया जा रहा हो बॉडी पार्ट के वो मॉलिक्यूल रेजोनेट होते हैं. और उस रेजोनेंस को डिटेक्ट करने के लिए इस पूरे सर्कल में सेंसर्स लगे होते हैं जो उसके अगेंस्ट उन वैल्यूज को पिक कर लेते हैं. लेकिन अगर हमारे सामने एज अ डॉक्टर वो वैल्यूज रख दी जाएं तो हमें तो कख पता नहीं लगेगा. सो इमेज प्रोसेसिंग कहाँ पे आती है कि वो इन वैल्यूज को एक मीनिंगफुल फॉर्म देती है इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज. प्री डिफाइंड ग्रे लेवल्स उसको मिल जाते हैं और वो एक तस्वीर बन जाती है जिससे एक ह्यूमन बीइंग एज अ डॉक्टर उसको देख के
बता सकता है if anything is wrong within that. यहाँ पे क्या इमेज प्रोसेसिंग है जी? एक प्रिंटर में जो कार्ट्रिजेस लगी होती हैं वो कौन से कलर होते हैं? ब्लू आरजीबी। अब यही पॉइंट है रेड, यहाँ पे। ग्रीन, ब्लू। नहीं बेटा, यही पॉइंट है कि हमारे पास ऑल दो कलर्ड इमेजेस सिस्टम पे डिजिटली आरजीबी होते हैं, लेकिन जब आपका प्रिंटर प्रिंट करता है तो वो उनको सियान, मैजेंटा और येलो में प्रिंट करता है। और आपके पास जो कलर कार्ट्रिज है आज प्रिंटर में जाके देख लीजिएगा, उसके अंदर आरजीबी कलर्स नहीं होते, उसके अंदर जो कलर्स होते हैं वो सियान, मैजेंटा और येलो होते हैं। तो यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व किस तरह हो गई कि अगर आपने किसी इमेज का प्रिंट निकालना है तो बेसिकली उसके अंदर पहले कन्वर्जन होगी आरजीबी से सीएमवाई में, और तब जाके वो इमेज प्रिंट होगा। इसी तरह डिस्प्ले डिवाइसेस में क्या इमेज प्रोसेसिंग होगी? नॉर्मली ये एक फैक्ट है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इनपुट एनर्जी कभी भी एज इट इज आउटपुट एनर्जी के बराबर नहीं होती, मतलब आउटपुट एनर्जी हमेशा रिड्यूस होती है बिकॉज इट गेट्स कंज्यूम्ड। सो अगर आप किसी इमेज को डिस्प्ले में एज इट इज दिखाएंगे, द डिस्प्लेड इमेज विल ऑलवेज लुक डार्कर, डिमर, डल एज कंपेयर टू द ओरिजिनल इमेज। सो यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग ये होती है कि आप आने वाले इमेज को उतना ही पहले इनहेंस कर देते हैं और फिर शो करते हैं, ताकि जितना आपने इनहेंस किया उतना ही उसने उसको कम कर दिया और एक्चुअल पिक्चर एज इट इज दिखना स्टार्ट हो गया। फिर हमारे पास एग्जांपल है हबल टेलीस्कोप की। हबल टेलीस्कोप के बारे में आप लोगों ने बहुत सारों ने पढ़ा होना है, बाय द वे ये पाकिस्तान में नहीं। तो इस हबल टेलीस्कोप में एक लेंस का एरर आ गया। सो सोल्यूशन नंबर 1 वाज to send another mission on Hubble telescope and replace the faulty lens and come back, which might cost billions of dollars. And solution number 2 was to process those faulty images and correct them by using image processing techniques, which were much cheaper. And then we have this mobile phone of ours, जिसके अंदर आपके पास कंप्रेशन से लेके कोडिंग से लेके तमाम इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स यूज होती हैं। इवन स्माइल डिटेक्शन होती है, आप स्माइल करते हैं पिक्चर ले ली जाती है। इवन फेस डिटेक्शन होती है जिसके ऊपर वो बॉक्सेस बन जाते हैं, और बहुत सारी इमेज प्रोसेसिंग इसके अंदर होती है। लाइट कम है तो वो स्क्रीन को ब्राइट करके दिखाए, इस किस्म के छोटे छोटे इमेज प्रोसेसिंग के टूल्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। एयरपोर्ट पे, मॉल्स में पड़ी हुई एक्सरे स्कैनिंग मशीन जो आपके बैगेज को देती है। X-rays are just waves. They pass through objects. They get blocked by in different ways by different type of objects. So these waves might pass through without any issue through the cloth probably, but not through a metal or through a liquid. So एक्सरे के अगेंस्ट इन तमाम डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स की डिफरेंट आउटकम आती है। अब वो वैल्यूज तो किसी काबिल नहीं है, बट वंस दीज वैल्यूज आर गिवन अ फॉर्म ऑफ पिक्चर, देन द पर्सन सिटिंग बिसाइड दैट मशीन बाय लुकिंग एट द स्क्रीन कैन सी कि इसके अंदर किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं वो पास थ्रू हो रहे हैं। नंबर प्लेट रिकग्निशन, आप तमाम टोल, मोटरवे टोल्स, हाईवे टोल्स के ऊपर अगर सपोज बंदे बैठा दें कि जो वो हार्ड कॉपी में नंबर लिख रहे हो उन तमाम गाड़ियों की जो पास हो रही हो, एंड देन यू वांट टू फेच अ कार if when it has crossed which place, so you have to go through lots of hard copy data. But if you have got a system which detects the number plate number 1 out of the car, number 2 detects the digits or the alphanumeric values from that area and then digitizes them, then probably it will just take a search key and few seconds to retrieve all that information. So this is image processing, where you take the image, you probably enhance it, you probably crop it, you probably identify objects out of it. So all these are examples of image processing. And sometimes some barcoders also detect specific patterns which are coded
which comes under the process, under the definition of image processing. So point wise अगर मैं बात करूं, we process images to facilitate picture storage and transmission. जैसे कि मैंने भी explain किया, to efficiently store an image in a digital camera. So instead of having a raw image, we get an image which is saved with the name, probably a code .jpeg, and we can send an image through mobile phone. आपने बहुत दफा ये फील किया होगा, while you send an image or a video through WhatsApp to a friend, the quality of that image degrades much. So it was actually processed before sending by WhatsApp, and that processing was to compress it more so that it takes less data and less time for transmission. By enhancement and restoring images, it can be like removing scratches from an old photo. It can be to improve visibility of a tumor in a radiograph. And believe me, this is happening everywhere. मैं आपको आगे जाके कुछ examples दूंगा जिनके अंदर हमारे students ने already कुछ ऐसे tools जो हैं ऐसे hospitals में already deploy किए हुए हैं, which are helping those doctors and making their job much simpler. You can extract information from images, like you can detect or measure the water pollution from aerial images. And by aerial images, we mean the images taken by some UAV or some satellite. We can measure the 3D distances and heights of objects from stereo images. हमें already वो Google Maps में idea है कि हम वहाँ पे even buildings की heights देख सकते हैं कि वो कितनी heights है. So it's quite impossible कि अगर आप suppose किसी एक chair को top से देख रहे हो तो आप बता सको कि उसकी height कितनी है. पॉसिबल नहीं. मतलब अगर सपोज अगर आप एक बॉल पॉइंट या पेंसिल भी टेबल के ऊपर स्ट्रेट खड़े कर देते हो और बिल्कुल टॉप से उसको देखते हो, यू कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट इट्स हाइट, बिकॉज फॉर यू व्हाटएवर दैट ऑब्जेक्ट इज, दैट इज जस्ट अ पॉइंट. सो व्हाट डू यू थिंक कि ये कैसे बना होगा? मतलब जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को टॉप से देख रहे हो, सो फॉर यू सिर्फ ये चीज विजिबल है, ये इंफॉर्मेशन जो है you never know about it. So how do you think it happens कि हमें heights भी आ जाती हैं, 3D models भी बन जाते हैं, satellite images जो हैं हमें बहुत कुछ information दे देते हैं. जी कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं है? मकसूद एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, आपने क्या कहा सर? बेटा मैंने ये कहा है कि कैसे पॉसिबल है कि एक सैटेलाइट जो है वो टॉप से आपके पास पिक्चर्स दे रहा है एंड स्टिल इट कैन टेल कि बिल्डिंग की हाइट क्या है, या ये एक बिल्डिंग बड़ी है, दूसरी छोटी है, तीसरी बड़ी है. हाउ इट कैन टेल? मैग्नीट्यूड. लेकिन फहद मैग्नीट्यूड क्या होगा? मतलब एक इमेज के अंदर आपने एक सैटेलाइट पे कैमरा, उसने पिक्चर ली, उसको बोल सिर्फ उस बिल्डिंग की छत नजर आ रही है, दैट्स इट. हाउ डू यू नो हाउ tall that building is? हाँ, but the question is, Noor, how we calculate these dimensions? आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है सर, मैथ्स के आपको कोई आइडिया है? सॉरी बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक सर फॉर्मूला, सर यस फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सही कह रही हो आप, मतलब आप सही कह रही हो. So these are actually known stereo images. So you take a picture of such building from probably this side, and then you take another picture from this side, and then you do some calculations, do some basic calculations known as stereo images, and you calculate the heights of objects, even the dimensions of objects. And then when we have to prepare an image for display or printing, we might have to adjust its size, we might have to change its colors. So all this comes under image processing. And then comes biometric based identification. And biometric is basically anything related to a human through which he or she can be recognized, like thumbprints, facial identification, iris, ear shape, palm print,
vein structure, voice, all these are biometrics. Anything wrong with this picture? सर ब्लड है। हाँ, ये खैर ये ब्लर तो शायद ज्यादा इसलिए नजर आ रही है कि वो जो ये कम्युनिकेशन हो रही है शायद अब आपको ज्यादा साफ नजर आ रही है। जी सर आपको पहले से साफ हो गई होगी। What is the difference between these two? सर क्लियरेंस में यानी कि इसकी क्वालिटी बेहतर है What is the राइट राइट वाले की क्वालिटी बेहतर आपको फील हो रही है। सो जरा सोचो कि why your mind is telling you कि राइट वाले की क्वालिटी बेहतर है। कंटेंट तो वही है। So what is actually the key which tells you कि यार ये राइट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है? पिक्सल क्वालिटी। सर राइट वाली ज्यादा डिटेल्ड इमेज लग रही है, इसमें डिटेल ज्यादा मशो हो रही है। एग्जैक्टली यानी कि अब आपका माइंड आपको ये बता रहा है कि राइट वाली इमेज के अंदर यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन नेबरिंग एरियाज, जिससे आपको लाइंस क्लियर मिलती हैं। देखो एज क्या है, एज से मुराद एंड है ना। आपको फील हो रहा है कि ये एज है, आपको फील हो रहा है कि ये जगह एक एज है, सिर्फ इसलिए फील हो रहा है कि ये अपने बैक साथ वाली वैल्यू से डिफरेंट है। और वो जितना डिफरेंस ज्यादा फील हो रहा है उतना आपको वो पिक्चर बड़ी शार्प नजर आ रही है, क्लियर नजर आ रही है। सो शार्प फोटो से मुराद ये है जिसमें हर डिटेल, हर ऑब्जेक्ट स्टैंड्स आउट, नजर आ रहा है, क्लियरली फील हो रहा है। दिस इज शार्पनिंग एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू लाइक this image more as compared to this image. So this was an example of photo sharpening. Next we come to noise removal. What is wrong with this picture? डिस्टॉर्टेड है सर फोटो। कोई और? क्या बुरा लग रहा है इसमें? क्यों बुरी लग रही है पिक्चर? आप लोगों को नॉइज नहीं नजर आ रही है इसमें? जी फहद। सर स्पॉट से नजर आ रही हैं, शायद पिक्सेल्स में शायद। बिल्कुल सही आपने कहा, इसके ऊपर नॉइज नजर आ रही है, स्पॉट नजर आ रहे हैं और हमारा माइंड फौरन हमें बता रहा है कि यार इसमें कोई चीज है जो कि अनयूजुअल है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड ने लर्न किया हुआ है कि कभी किसी को ऐसी शर्ट पहने नहीं देखा जिसके ऊपर डॉट हो, या अगर वो शर्ट के ऊपर डॉट हो तो वही डॉट उसके वो दीवार पे नहीं हो सकते, या वही डॉट जो है फुटबॉल पे नहीं हो सकते। तो अल्टीमेटली हमारा माइंड में ये बता रहा है कि दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद द इमेजेस, विद द इमेज, जिसके ऊपर बहुत सारे डॉट नजर आ रहे हैं, बहुत सारी नॉइज नजर आ रही है। अब ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि नॉइज आती क्यों है, लेकिन लेट्स डिस्कस कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद हो कि हमने इस इमेज को ठीक करना है, तो कोई आइडिया आता है जहन में हम क्या करें इस इमेज के साथ कि वो ठीक हो जाए? देखो अब मैंने पॉइंटर आप लोगों को जो सोचने के लिए दे रहा हूँ ना, पॉइंटर ये दे रहा हूँ कि अच्छी वाली व्हाइट टी शर्ट के ऊपर एकदम एक ब्लैक डॉट है, एक पॉइंटर है। एक फुटबॉल के ऊपर व्हाइट स्पेस पे एकदम कोई ग्रे सा डॉट है। ये मैं आपको सोचने का पॉइंटर दिया है। इसकी बेस के ऊपर आप कोई मुझे बता सकते हो हम क्या ऐसा करें कि वो खत्म हो जाए? जी बेटा। सर जैसे व्हाइट शर्ट है तो उसके ऊपर आपने कहा ब्लैक डॉट है। हाँ जी जी, अब आप सही कह रहे हो कि उसके ऊपर व्हाइट डॉट है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि क्या हम ऐसा करें, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कैसे करें, क्या हम ऐसा करें कि ये खत्म हो जाए? सर जैसे शर्ट का कलर व्हाइट है तो उसी को उसकी जगह रिप्लेस कर दें ब्लैक वाले तो पिक्सेल्स रिपेयर होंगे उस जगह के। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने पिक्सेल्स एक तरह रिपेयर होंगे, रिप्लेस होंगे। तो यहाँ पे अब आप व्हाइट शर्ट पे सपोज या फुटबॉल के ऊपर व्हाइट एरिया के ऊपर ब्लैक डॉट को रिप्लेस करना चाह रहे हो। अच्छा, रिप्लेस किससे करें? सर जो शर्ट का कलर है वो जो ब्लैक करके सर उससे रिप्लेस कर दें। बिल्कुल सही है, सही आंसर है कि जी जो शर्ट का कलर है या जो इसके इर्द गिर्द के पिक्सेल्स का कलर है उससे रिप्लेस कर दें।
तो जनाब अभी जो आपने ये डिस्कशन की है ना, दिस इज द बेसिक फर्स्ट फिल्टर टॉट इन इमेज प्रोसेसिंग नोन एज ब्लरिंग फिल्टर। एंड बाय ब्लरिंग या एवरेजिंग फिल्टर वी मीन कि हम हर पिक्सल को रिप्लेस कर दें विद द एवरेज ऑफ इट्स नेबर पिक्सल्स। मतलब जो वैल्यू किसी भी पिक्सल के नेबर की है उन तमाम का एवरेज लें और वहां पे उसको रिप्लेस कर दें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं हर पिक्सल्स को वैसा ही जैसा कि उसके नेबर्स हैं। तो ये जो टेक्निक अभी हमने डिस्कस की है, दिस इज नोन एज एवरेजिंग फिल्टर। अब देखो करना तो अल्टीमेटली कोड में है। सो कोड राइट नाउ अभी तक जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हम समझ चुके हैं, इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि पहले वो ये जज करे कि पूरा पिक्सल कौन सा है। उसकी आंखें तो है नहीं, उसके लिए तो सारे इमेज की वैल्यूज हैं। तो वो तो ये नहीं कर सकता कि जो पूरा पिक्सल हो सिर्फ उसी को रिप्लेस कर दो। तो हम एक जेनेरिक रूल बना देते हैं, हर पिक्सल को रिप्लेस कर दो विद द एवरेज ऑफ इट्स नेबर्स। तो जहां पे पिक्सल वैसे ही एक जैसे होंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस अमल से, लेकिन जहां पे एकदम डिफरेंट पिक्सल होगा वहां पे जो है वो अपने नेबर्स की वजह से उस पिक्सल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये तो आपको जी बेटा। सर अब जैसे कि फर्ज करें हम रिप्लेसमेंट की बात करें, अब मेजॉरिटी ऑफ द पिक्चर अगर उसकी क्वालिटी लो है, जिस तरह की इस तरह उसमें नॉइज है, तो आप कह रहे हैं हम एवरेज ऑफ द नेबर्स चेक करते हैं। अब नेबर्स की एवरेज ही अगर ज्यादातर पुअर है तो उस सिनेरियो में क्या होगा? अगर क्या हो, सॉरी दोबारा रिपीट करना आखिरी बात। सर अगर नेबर्स की जो एवरेज वैल्यू है क्वालिटी की वो अगर लो है, यानी कि पिक्चर की क्वालिटी ज्यादा लो है, ठीक हो गया, या पिक्सल्स ज्यादा। मैं बात समझ गया हूँ। आप बात कर रहे हो एनहेंसमेंट की। मैं इस वक्त इस एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ एक इशू रिजॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हिच इज नॉइज रिमूवल। तो आप सही कह सकते हो कि एक बुरी पिक्सल भी हो और ऊपर से नॉइजी भी हो, फिर क्या करें? वो एक बात हो सकती है। फिलहाल लेट्स डिस्कस कि हमने नॉइज को कैसे खत्म करना है। अब नॉइज की डेफिनेशन आप लोगों के सबने तकरीबन जो बात की है वो यही की है कि यहाँ पे ये पिक्सल नहीं होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे शायद ब्लैक हिस्सा था और उसके ऊपर व्हाइट डॉट क्यों आ रहा है, या यहाँ पे व्हाइट था उसके ऊपर ब्लैक क्यों आ रहा है। सो एक्चुअली आप कहना ये चाह रहे थे कि हर पिक्सल को उसके नेबर जैसा होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। एकदम अगर स्टैंड आउट करेगा तो वो डॉट दिखेगा। उसके लिए हमने एक तरीकाकार इख्तियार ये किया कि तमाम वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया जाए विद द एवरेज वैल्यू ऑफ इट्स नेबर्स। अब तमाम वैल्यूज को क्यों भाई? तमाम वैल्यूज तो खराब नहीं थी। वो इसलिए कि हमारा एल्गोरिथम अभी इतना एफिशिएंट नहीं है कि पहले बैठ के वो ये जज करे कि कौन सा पिक्सल खराब है और फिर सिर्फ उसी को रिप्लेस करे। ठीक है जी, इससे नॉइज तो रिमूव हो गई, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? तो पिक्चर की क्वालिटी लो हो सकती है या नॉइज उसमें ब्लर हो जाएगी, पिक्चर ब्लर हो जाएगी। इसीलिए हम इस एवरेजिंग फिल्टर को ब्लरिंग फिल्टर भी बोल देते हैं। Then we have certain examples like photo restoration, कि आपकी पूरी फोटो है, स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, उसको आपने रिस्टोर किया। We have examples of colorization। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि पुरानी कोई दादा दादी की पिक्चर पड़ी हुई थी और उस पिक्चर को ख्याल आया कि अब कलर किया जाए, तो आप फोटोग्राफर के पास लेके गए, उसने सम इमेज एडिटिंग टूल पहले स्कैन किया, फिर कुछ इमेज एडिटिंग टूल यूज करके उसको कलर असाइन किए और फिर प्रिंट करके आपको दिया। तो फोटो कलराइजेशन भी इमेज प्रोसेसिंग की एग्जांपल्स में शामिल है। कैसे होता है ये हमने बाद में पढ़ना है। एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने ब्लर की बात की कि पिक्चर ब्लर हो जाएगी, तो ये सॉल्यूशन तो नहीं हुआ हमारे पास पूरा का पूरा। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये नॉइज रिमूवल का सिर्फ पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये सिंपलेस्ट सॉल्यूशन जरूर हुआ। जब कुछ नहीं था तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था। आगे जाके यस हमारे पास और बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे जिनके थ्रू हम नॉइज को रिमूव भी करेंगे और इमेज की क्वालिटी भी बची रहेगी। ठीक हो गया? ओके जी, इस इमेज में क्या बुरा लग रहा है? फिर बहुत डल है। डल है। कंट्रास्ट क्या होता है? अक्सर हम एक दूसरे को कह देते होते हैं यार आज तुमने कपड़े बड़े कंट्रास्ट वाले पहने हुए हैं। या जब हम खरीदारी करने जाते हैं तो हम एक ट्राउजर खरीदते हैं, फिर कहते हैं यार एक कंट्रास्ट में शर्ट देना। लाइक जो कलर्स आपस में अच्छे लगे, तो ये मतलब वो अच्छे लगने की रीजन सर कलर
आपस में मैच कर रहे होते हैं। ना बेटा, तेरा बड़ा बुरा टेस्ट है टेस्टिंग का, इसका मतलब है ऑपोजिट हो। किसी ने लफ्ज बोला है अभी ऑपोजिट हो। यस, हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी आप इस तरह की चीज लें तो दोज कलर स्टैंड आउट अगेंस्ट ईच अदर, दे आर इन कंट्रास्ट विद ईच अदर। तो कंट्रास्ट का मतलब ये हुआ कि वो जितने भी कलर एग्जिस्ट करते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नजर आए। तो जनाब यहाँ पे जो इमेज दिखाया जा रहा है इस वक्त, इसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रही कि बिल्डिंग्स कौन सी हैं, पानी वाला इतना क्लियर नहीं है। अब उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर मैं ये इमेज दिखाऊं तो ये वही इमेज है, लेकिन इसके अंदर खिड़कियों की डायमेंशन से लेके छतों से, मिनरेट से, पानी से, सब्जा, हर एक चीज एक डिफरेंट कलर लिए हुए, एक डिफरेंट ग्रे स्केल लिए हुए। तो मैं कहूंगा कि राइट वाले इमेज का कंट्रास्ट बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू लेफ्ट वाले इमेज के, जो कि ओरिजिनल इमेज है। ये हम एनहांसमेंट कैसे करते हैं ये भी हमने नहीं पढ़ना, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज कंट्रास्ट एंड व्हाट इज मेंट बाय कंट्रास्ट एनहांसमेंट। तो यहां पर इस ओरिजिनल इमेज में इतने ग्रे लेवल वैल्यूज नहीं थी कि वो एक दूसरे से जुदा दिखती, जबकि एनहांस्ड इमेज के अंदर पिक्सल वैल्यूज मुख्तलिफ हैं, उनकी रेंज इतनी ज्यादा है कि हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट दिख रहा है। तो दिस इज कंट्रास्ट एनहांसमेंट। इसी तरह कलर फोटो एनहांसमेंट में भी होता है, जिस तरह हमने वो ग्रे स्केल में देखा है। अब इस पहले इमेज के अंदर, इमेज नंबर 1 के अंदर, वी आर नॉट एबल टू डिस्कवर इफ देयर इज समथिंग अंडर द रॉक, जबकि जब हमने इस इमेज को एनहांस कर दिया, वी कैन सी दैट देयर इज अ फिश हाइडिंग अंडर द रॉक। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको इमेजेस एनहांस करने के बाद उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि इनिशियली उस इमेज को देखने से नहीं मिल रही होती। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल 3 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली नंबर 4 है। 3 जो है वो लो कंट्रास्ट की इमेज थी, 4 जो है वो इंक्रीज कंट्रास्ट की इमेज है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मजीद वाज़े नजर आ रही है। अब इमेज एनहांसमेंट जो है या कोई भी जो काम है, दैट डजंट मीन कि वो एक सिंगल स्टेप का नाम है। लाइक फॉर एग्जांपल, इस इनिशियल इमेज से इस फाइनल इमेज के जाने तक, जिसमें हमें फाइनल इमेज बड़ा अच्छा लग रहा है और इनिशियल इमेज हमें बड़ा डल लग रहा है। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि पहला काम गाउसियन ब्लर, दूसरा काम कंट्रास्ट एनहांसमेंट, तीसरा काम मीडियन फिल्टर अप्लाई हुआ, चौथा काम शार्पनिंग अप्लाई हुई, इन 4 प्रोसेसेस से गुजर के ये इमेज एनहांस हुआ। सो बहुत दफा एनहांसमेंट के अंदर वी नीड टू डील विद सम थिंग्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था जी कि ये जो नॉइजी इमेज है ये तो डल भी है। तो हाँ, हमें बहुत दफा ऐसा करना पड़ेगा कि शायद हमें पहले नॉइज रिमूव करनी पड़े, फिर उसको इनहेंस करना पड़े, या पहले इनहेंस कर लें और बाद में नॉइज रिमूव कर लें। अब इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि सीक्वेंस का क्या मतलब है। और सॉरी, बाय द वे, यहाँ पे जो इमेज दिखाई गई है इसमें ये जो चारों प्रोसेसिंग की गई थी, दे वर डन बाय यूजिंग फोटोशॉप, और फोटोशॉप के हर उस क्लिक के पीछे जिसने ये काम किया, इमेज प्रोसेसिंग का एल्गोरिथम कोडेड है। एंड दिस एग्जांपल वाज टेकन फ्रॉम here, from this URL. Okay, our next topic is de-blurring. इमेज बुरी लग रही है क्योंकि इसके अंदर ब्लर है। ये ब्लर क्यों आई, क्या ख्याल है? मूवमेंट की वजह से सर। मूवमेंट की वजह से। और आजकल हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर, तकरीबन हर मोबाइल फोन के अंदर कैमरा के साथ ये चीज इनहेरेंट होती है कि वो मोशन ब्लर को रिड्यूस करने की कोशिश करे। एक टाइम था काफी साल पहले, शायद आप छोटे होंगे, एक कैमरा आया था जिसका नाम ही सोनी साइबर शॉट था। वो उस वक्त बड़ी जबरदस्त किस्म की नई चीज आई थी। और साइबर शॉट कैमरे की जो बेसिकली सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि वो मोशन ब्लर को बड़ा कम करता था, या वो पहली अटेम्प्ट थी, या वो शायद सबसे अच्छी अटेम्प्ट थी उस वक्त कि वो डी ब्लरिंग कर सके।
सो डीप ब्लरिंग समझ में आती है कि हमें इसलिए करनी है ताकि हम कंटेंट को सही मायनों में देख सकें. So deep blurring is again an example of image processing. वो तो समझ में आ गई कि डीप ब्लरिंग जो है वो एग्जांपल है, लेकिन ये हरकत हमें कब करनी पड़ेगी? कब ऐसा होगा कि हम चाहें कि नहीं यार हम इमेज को जो है ना ब्लर कर दें? और जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए वहाँ में. एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात की. जब हमारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन यूजलेस हो, लाइक फॉर एग्जांपल हमें टास्क दिया गया है कि आप अपने इमेज प्रोसेसिंग के टूल बनाएं जो इसके अंदर काउंट करे कि कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं. अब हमें इससे गर्ज नहीं है कि कौन सा कॉइन जो है वो निकल है, ये कौन सा टाइम है, यानी कि मतलब कौन सा कोई 5 रुपए का, ये कौन सा कोई 2 रुपए का है. सो वी ब्लर. एंड व्हाई डू वी ब्लर? टू गेट रिड ऑफ द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, perhaps the shapes on the coins or perhaps the values written on the coins. We want to get rid of them because they are not useful for us. And then we further process this image to do whatever we have been asked. हम इसको further process करके वो काम कर लेते हैं जो हमें कहा गया है. बट यहाँ पे ब्लरिंग करने का जो मकसद था वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जाया करना था, उससे जान छुड़ाना था. सिमिलरली ये ऐसी एक और एग्जांपल है. अब इन दोनों इमेजेस में फर्क क्या है भाई? तो वो डार्क इमेज है, लाइट है, और कुछ और कोई और बताए? सर पहली वाली में नंबर ऑफ ग्रे टूल्स ज्यादा है, दूसरी में कम है. बिल्कुल सही है, 2 है सिर्फ सर. दूसरी लेफ्ट हमारी लेफ्ट वाली इमेजेस के अंदर ग्रे लेवल्स ज्यादा हैं और यहाँ पे ग्रे लेवल सिर्फ 2 हैं, या ब्लैक या वाइट. तो यहाँ पर लेफ्ट में हमारे पास ग्रे लेवल ज्यादा है, मोर ग्रे लेवल्स. And this is the reason for calling it binarization, because we are having only 2 gray levels. So what do you think would be the reason to do something similar with an image? क्या ख्याल है, क्यों जरूरत पड़ी हमें इस हद तक इमेज के बेड़ा गर्क करने की? हमने उसको बाइनराइज कर दिया. सर ये इमेज प्रिजर्व तो नहीं हो रही? जी नूर, इस तरह इमेज प्रिजर्व तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले. जी आनिश. सर अगर फर्ज करें कोई डाटा हमारे पास है, हमने उसकी काउंटिंग करनी है, हमने किसी वर्कर से कराना है, उसको हमने डाटा ट्रांसफर करना है. अगर हम ओरिजिनल फाइल भेजेंगे तो सर वो काफी ज्यादा डाटा हो जाएगा. अगर हम उसको वो बिल्कुल ये भी कह सकते हो आप, देंगे तो डाटा कम जाएगा. बिल्कुल बेटा आप सही कह सकते हो कि स्टोरेज के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है, लेकिन ये अगर आप उसको रिलेट कर दो मेरी प्रीवियस स्लाइड की एग्जांपल से, जहां पे हमारे लिए ये पहचान करना जरूरी नहीं था कि सिक्का कौन से टाइप का है, बस सिर्फ उसका काउंट था. वहां में सबसे इजी वे तो हमारे पास यही है. एक तो हमने उसको ब्लर किया, ब्लर करने के बाद हमने उसको बाइनराइज कर दिया, और अब हमने सिर्फ करना क्या है, ब्लैक पिक्सल्स काउंट करने हैं, और वो वाले ब्लैक पिक्सल्स काउंट करने हैं जो एक साथ पड़े हुए हैं इकट्ठे. तो एक ग्रुप ये बन जाएगा, दूसरा ग्रुप ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, चौथा ये बन जाएगा, और हम कहेंगे 4 पिक्सल पड़ेंगे, 4 कॉइन्स पड़े हुए या 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए. क्योंकि हमने अपने इमेज को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है दैट वी गॉट रिड ऑफ एवरी अदर थिंग एक्सेप्ट व्हाट वी नीडेड टू काउंट द पिक्सल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और बड़ा मजे का काम हो सकता है. यहां से हम शायद ये भी बता दें कि 5 रुपए का सिक्का कौन सा है और 2 रुपए का कौन सा है. वो कैसे? सर उसकी लाइनिंग जो हमें नजर आ रही है. नो सर साइज से एग्जैक्टली. उस नंबर ऑफ पिक्सल्स के मजमूए से, उस कलेक्शन से, उस साइज से हम बता सकते हैं कि यार ये अच्छा. अब इसका मतलब है हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक डिस्कवर कर ली. किसी ने कहा कि लाइन, किसी ने कहा उसका साइज, किसी ने कहा ग्रे स्केल. अब ये तमाम चीजें जिनसे हम किसी चीज को पहचान करते हैं आर कॉल्ड फीचर्स.
फीचर से मुराद अब एक इंसान की शाख्त के लिए उसके फीचर्स में उसकी हाइट है, द वे ही वॉक्स, उसका फेस है, द वे ही टॉक्स। अब अगर आपने आंखें बंद की हो और आपके सामने आपका कोई दोस्त आके खड़ा हो जाए, हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज हिम? ऑफ कोर्स द वे ही टॉक्स, बिकॉज यू कैन नॉट सी हिम। एंड इफ यू आर विद ओपन आईज यू कैन सी हिज फेस एंड यू कैन रिकॉग्नाइज इट, हालांकि उसने मास्क भी लगाया हुआ है। लेकिन अगर वही दोस्त जो है आपसे तकरीबन 200 मीटर के फासले पे आ रहा हो, यू कैन नॉट सी हिज फेस, हिज और फेस, देन यू वुड रिकॉग्नाइज हर बाय द वे probably him or her height or the way he or she walks. So देखो अब ये फीचर चेंज हो रहे हैं, एक ही काम के लिए फीचर चेंज हो रहे हैं। कभी आप हाइट और द वे ऑफ वॉकिंग को फीचर बना लेते हो, कभी आप उसके चेहरे को फीचर बना लेते हो, कभी आप द वे ही टॉक्स फीचर बना लेते हो। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हमने देखना है कि जो काम हम करने जा रहे हैं वहां पे हमें क्या फीचर रिक्वायर्ड है। अब ये बड़ा आसान काम था, सिक्के सारे के सारे इकट्ठे पड़े हुए थे, एक ही लेवल पे पड़े हुए थे, और हमने बड़े इजीली बता दिया कि जनाब सिक्के कितने हैं और कौन कौन से, सिर्फ साइज की वजह से, क्योंकि जी दो टाइप के हैं, जो छोटा साइज में वो फलाना होगा, जो सिक्का बड़ा साइज में है वो दूसरा होगा। अब फर्ज करते हैं हमारे पास यही केस अब इस तरह आता है कि हमारे पास कुछ कॉइन्स पड़े हुए एक टेबल पे जिसकी हाइट ज्यादा है, और उसके बिल्कुल नीचे एक चेयर है, उसके ऊपर भी कुछ कॉइन्स पड़े हुए। अब क्या साइज एक अच्छा फीचर है ये बताने के लिए कि कौन सा सिक्का कौन सा है? नहीं सर। एंड द रीजन इज कि कैमरे से डिस्टेंस बढ़ गया, जो चेयर पे पड़े हुए हैं वो कैमरे से दूर हो गए, इसलिए शायद वो सिक्का अगर बड़ा भी हो तो छोटा दिखेगा, और टेबल पे छोटा सिक्का भी है जो कैमरे के नजदीक है वो बड़ा दिखेगा। अब ऐसे केस के अंदर अगर हमें कहा जाए कि पहचान करो कि ये कौन सा कॉइन किस नॉमिनेशन का है, तो हम पुराना फीचर यूज नहीं कर सकते जो हमने किया था। अब हम क्या करेंगे? अब कौन सा फीचर चूज करेंगे? शायद कॉइन का कलर, शायद कॉइन की शेप, शायद कॉइन के ऊपर आने वाली लाइंस। अब ये तमाम चीजें हमारे फीचर बन जाएंगे। सो ये एक इंट्रो था सिर्फ फीचर्स का। नेक्स्ट कम्स एज एक्सट्रैक्शन, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री है उसको डिस्कवर कर सको फॉर मल्टीपल रीजंस। इसी तरह आप किसी सैटेलाइट इमेज से सेटलमेंट एरिया डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एरियल इमेज से। बाय द वे सुपारको जो हमारी एजेंसी है पाकिस्तान की, जो डील करती है सैटेलाइट्स और सैटेलाइट के इमेजेस से, they sometimes provide interesting FYP work to do, and against that work they provide you the satellite images of that specific area, and this is really a domain in which we should do some work, and it also comes under the domain of GIS, Global Information something systems, yeah, Geographic Information Systems. I just can't remember exactly what G stands for. Probably it's for geographic. So with these images you can even tell the rate of growth for a certain city, और आप भी क्यों जानना चाहेंगे? so that the planners can plan better। और आपने वो गूगल अर्थ में ऑलरेडी ऐसी फैसिलिटी देखी होगी, अगर आपने वो स्लाइडर है नीचे दिया होता है जो नंबर ऑफ ईयर्स में आप उसको पीछे कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने किसी गांव को या अपने शहर को किसी को देखें कि how did it look in 2008, and then you move the slider and you will see how that city or that village has been spreading across the years, and you can even tell कि एक certain गांव की या शहर की spread करने की जो ये रेशो है, it was how many kilometers square per year, because ये जो आपको images मिलते हैं इसके अंदर डिफाइंड होता है दैट 1 पिक्सल इज मैपिंग टू 5 मीटर स्क्वायर। ये जो हमें फ्री में गूगल के इमेजेस मिलते हैं ये 5 मीटर स्क्वायर तक की रेजोल्यूशन के होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मेरे ख्याल है पेड सर्विस में आपको 1 पिक्सल जो है वो 1 मीटर स्क्वायर तक रिप्रेजेंट करता है, उसकी इतनी रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है। सो यू कैन डू सर्टेन प्रोजेक्ट्स
by using aerial images to detect settlement areas, to detect different types of crops, to detect के क्या crop के रंग change हो गए हैं जिसकी वजह जो है वो ज़मीन में नमी का तनासब नहीं है। हमने बहुत दफ़ा सुना होगा, खबरों में पढ़ा होगा कि मुतालबा किया जाता है कि इस इलाके को कहत ज़दा डिक्लेयर किया जाए। कहत ज़दा इसलिए डिक्लेयर किया जाए ताकि उस एरिया में जो किसान है उसको गवर्नमेंट की ड्यूटीज ना देनी पड़े, टैक्सेस ना देने पड़े, क्योंकि वहाँ पे पहले ही आफत है। लेकिन हाउ टू डिटरमिन इफ एन एरिया इज रियली वो कहत ज़दा है भी है कि नहीं है? सो you can do all that using satellite images. And then we have all this object segmentation and labeling, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं अभी, that you do some things and then you ultimately put labels to objects के इसके अंदर क्या क्या object exist करते हैं based on their size, based on their shape, based on their whatever is written on them or the shapes on them, you can determine what object is what. And then you do multiple things to improve the quality. For example, हेयर लाइन फ्रैक्चर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हेयर लाइन फ्रैक्चर्स जो हैं वो ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जो बड़े बारीक होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे गो अनडिटेक्टेड। खुदा न खास्ता किसी की बाजू में, उंगली में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, यू गॉट द एक्सरे डन, लेकिन जब उस एक्सरे को इनिशियली देखा गया तो इट वाजंट डिटेक्टेड। अब तो खैर रेजोल्यूशन बेहतर हो गई है मशीन्स की, वरना बहुत दफा ऐसा होता था कि हेयर लाइन फ्रैक्चर्स जो है दे गॉट अनडिटेक्टेड। So, agar being an image processing person, you can just write 2 lines of code and give it to a doctor in the form of a software which has got an interface, जिसमें कोई images load होंगी, उसके अंदर वो अपने एक्सरे इमेज को लोड करे और आपके दिए गई ऑप्शंस में से एक स्लाइडर को ऊपर नीचे करे तो वो इमेज ज्यादा इनहैंस हो जाए। और कितना टाइम इसने आपका लिया? अगर आपने इंटरफेस नहीं, मतलब अगर इंटरफेस को निकाल दें तो सिर्फ टोटल 2 कोड का लाइन है, 2 लाइन का सिर्फ कोड है, सॉरी। और बाकी आपने उसको अच्छी सी इंटरफेस देनी है, स्लाइडर देने हैं जिसके थ्रू वो इसकी इनहैंसमेंट कर सके। तो बहुत सारी डिटेल जो वो पहले नहीं देख सकते थे, या सपोज अगर उनके पास डिजिटल एक्सरे मशीन्स हैं जो कि बड़ी पुरानी रेजोल्यूशन की हैं एंड दैट डॉक्टर और दैट हॉस्पिटल कैन नॉट बाय अ न्यू वन व्हिच हैज गॉट अ बेटर रेजोल्यूशन, you can give him or her a simple solution which doesn't need the replacement of that machine. Because if enhancement is the problem, if higher resolution is the issue, if enhanced image is the requirement, you can do it very easily. और वो फिर आपके वो सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद इसको देख सकते हैं। और वो एक प्रोजेक्ट मैंने कॉम्प्लेक्स एप्टाबाद में करवाया था जहाँ पे हमने सर्जन्स के लिए डिजिटल असिस्टेंट बनाया था। उसमें हमने काइनेक्ट डिवाइस लगाई थी। नॉर्मली ऑपरेशन के दौरान भी डॉक्टर्स को कोई एमआरआई या एक्सरेज या कुछ इस तरह का देखना पड़ता है और उनको वो हाथ लगाना पड़ता है। तो वो एक कनेक्ट डिवाइस के साथ वो टोटल हाथ की मूवमेंट से, जेस्चर से वो किसी इमेज को उठा के लोड करवा के उसको किसी और इमेज के साथ कंपेयर करके बड़ा करके जूम इन जूम आउट, उसके ऊपर तमाम बेसिक इमेज प्रोसेसिंग की जितनी ऑपरेशंस हैं वो सारे अप्लाई करके बगैर टच किए वो सब कुछ कर सकते थे, while not touching anything। और इसके अंदर एग्जांपल है कि आपने नॉइज रिमूव कर दी किसी एक एक्सरे इमेज में से, या एक इमेज बड़ा ब्राइट था, ऑपोजिट बहुत ही ब्राइट था जिसको हम कहते हैं वॉश्ड आउट इमेज है, उसको ठीक कर देना, उसको थोड़ा डार्क कर देना ताकि वो बेहतर नजर आना स्टार्ट हो जाए। तो ये तमाम इमेज प्रोसेसिंग की एग्जांपल्स हैं। हबल का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि हबल टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च की गई थी और इसके अंदर एक इशू आ गया था। तो एक सोल्यूशन तो ये था कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगेन कॉस्ट करके उसको जाके रिप्लेस कर दो, और दूसरा तरीका ये था कि इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स को यूज करके आपने इमेजेस को करेक्ट कर लिया यहीं पे। आर्टिस्टिक इफेक्ट हम सब जानते हैं, ग्रीन कलर बैकग्राउंड, किसी जमाने में ब्लू कलर बैकग्राउंड, उसको यूज किया जाता है। तो हमारे लिए जब हम कोई मूवी देखते हैं तो वो हीरो कई दफा बड़ी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ा होता है और हम उसको दाद दे रहे होते हैं कि यार ये बड़ा बहादुर है, लेकिन उस वक्त उस बेचारे कैमरामैन का नहीं सोच रहे होते हैं कि जो कैमरा लेके उसके साथ साथ चढ़ा होता है वहां पे, तो हीरो तो सही वो हुआ जिसने कैमरा भी पकड़ा हुआ है, उसकी वीडियो भी बना रहा है। सो नन ऑफ देम इज एक्चुअली रियल। ना वो हीरो उस हाइट पे होता है, ना वो कैमरामैन वहां पे साथ कैमरा लेके चढ़ा होता है। दे आर ऑल आर्टिस्टिक इफेक्ट्स
जिसमें वो डिफरेंट इमेजेस को मैप करके they give you a perfect look of something which is happening. So this person which seems jumping probably from one building to another building is actually sitting on something which is hanged by a rope, but then you cannot see the rope and you cannot see that thing, and you see कि उसने वो jump लगाया और एक जगह से दूसरी जगह पे वो पहुंच गया, and many other effects. और इसी तरह आप वो भी जानते हैं जो ये एनिमेटेड मूवीज बनती हैं, दे आर अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बेसिक इमेज प्रोसेसिंग स्टेप्स. देन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसेस. आजकल जेस्चर बेस्ड मूवमेंट हमारे मोबाइल कैमरा में बड़े इजी नहीं है. हम चेहरा साइड पे करते हैं, जो मूवी आप देख रहे होते हैं वो पॉज हो जाती है. हम आंख क्लिक करें वो शायद नहीं देता. हम स्माइल दें वो पिक्चर ले लेता है. हम हाथ ऊपर से मूव करें, हैंड वेव दें वो अनलॉक हो जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज जो है हमारे पास अब आ चुकी हैं, जिसके अंदर जेस्चर रिकग्निशन भी शामिल है, फेशियल रिकग्निशन भी शामिल है. और ये कंसेप्ट पहली दफा दिया गया था जब कोई नहीं जानता था. आई एम सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया. जस्ट अ सेकंड. तो ये एक पहली मूवी आई थी विद द नेम माइनॉरिटी रिपोर्ट, जिसके अंदर पहली दफा ये कंसेप्ट दिया गया था ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसेस. तो माइनॉरिटी रिपोर्ट उस वक्त एक बड़ी मशहूर मूवी थी किसी ज़माने में, जब ये इस तरह की HCI की एग्जांपल्स हमारे सामने आई थी कि वो हाथों के मूवमेंट से मशीन को चला लेता था, और उस वक्त ये सिर्फ मूवीज में ही होता था, एक्चुअल नहीं था. तो जो इंसान सीखता है फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स बनाता है, उसके मूवीज में उसकी एग्जांपल्स आती हैं, एंड अल्टीमेटली दे बिकम अ रियलिटी because then somebody tries to actually do them. So हम यहाँ पे थे. But that doesn't mean again कि ये सिंपल एक किसी एक इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम का काम है. Of course it takes efforts. So you can have facial recognition detection, face detection, you can have hand detection, you can have skin detection, and so on. Another example is earthquake analysis. Again, आफत ज़्यादा करार देने के लिए किसी इलाके को बहुत ज़्यादा सियासत भी की जाती है, और उसके अंदर जो है वो बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो अपने टैक्सेस माफ़ करवा लेते हैं, क्योंकि शायद उनकी वहाँ पे अपनी कोई फैक्ट्री वगैरह लगी होती है, they get it included. But all such analysis can be done from the satellite images. तो उसका कितना असर कितने इलाकों पे हुआ है. Then comes the medical imaging, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर टोमोग्राफी की सबसे पहले एग्जांपल सुनी, और इसी के अगेंस्ट हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिजाइन की मशीनरी है, जो ऑटोमेटिकली उसको आप डिजाइन फीड कर देते हैं, और वो कपड़ों की तहें जो है उस डिजाइन के मुताबिक काट देते हैं, क्या वो उसके ऊपर डिजाइन बना देते हैं. दे आर कम अंडर कंप्यूटर एडेड डिजाइन. एंड देन कम्स अ ह्यूज वैरायटी ऑफ कंप्यूटर एडेड मशीनरी, जिसके अंदर कंप्यूटर ही कंट्रोल को कर रहा होता है. इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शंस में बहुत जगह पे ऐसी चीजें यूज होती हैं जहां पे एक इंसान जो है वो किसी मछलियों की डिफरेंट टाइप्स की छांटी कर रहा होता है, या वो छोटे और बड़े किन्नू की छांटी कर रहा होता है कि बड़ा एक्सपोर्ट होना है तो वो जाने देता है, और छोटे किन्नू अंदर से चुन चुन के निकालता रहता है. तो ये सारा कुछ मैकेनाइज किया जा सकता है, एंड अ ह्यूमन आई साइट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ कैमरा व्हिच कैन डू द सेम. और ऐसा हुआ कि फैसलाबाद के अंदर, और ये बड़ी पुरानी बात है, कपड़े की खड्डियां हैं बहुत ज्यादा जो कपड़ा बुनती हैं, और उसके अंदर दो धागे जो हैं वो क्रॉस में जा रहे होते हैं, एक को ताना और दूसरे को बाना कहते हैं. और एक बंदे की ड्यूटी होती है कोई 8 मशीन्स के ऊपर जिनको वो देख रहा होता है, और जब कहीं पे कोई ताना या बाना यानी धागा टूट जाए तो उसने उस मशीन को ऑफ करके दोबारा वो उसको जॉइंट लगा के व्हाटएवर करके दोबारा स्टार्ट करना होता है. अब जब उसके सुपरविजन में 8 मशीन्स होती हैं, अगर वो किसी एक को अटेंड कर रहा होता है तो दूसरी मशीन के अगेंस्ट एक धागा टूट जाने से दूसरा धागा चलता रहता है, which results into a lots of wastage of probably जो कपड़ा है जो धागा है उसको बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाती है. So a person like us made a simple solution, जिसमें उसने कैमरा माउंट कर दिया जो सिर्फ पिक्चर्स लेता रहता है, और पीछे उसी के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, छोटी किट लगा दी है, और
तो जब भी वो धागा टूटता है वो उसकी सर्किटरी को ट्रिप ऑफ कर देता है। अब इसे हुआ क्या कि उसने वो जो ज़िया था कपड़े का या उस धागे का या कॉटन का जो ज़िया था उसको कम कर दिया। अब वो मशीन रुक जाएगी, वो बंदा वापस आएगा, उसको वहां पे जोड़ेगा, चलाएगा और कपड़े की वेस्टेज जो है वो कम से कम होगी। और इस तरह की बेतहाशा एग्जांपल्स है। लाइक मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने, हम लोगों ने एयरफोर्स के C-130 एरोप्लेन्स की फ्यूल नोजल्स होती है, मतलब जिस तरह आप लोगों ने अगर कभी डीजल गाड़ी देखी हो, चलाई हो, तो डीजल गाड़ियों के अंदर उसका फ्यूल पंप होता है जिसकी कुछ नोजल्स होती है। Nozzles are those which spray the fuel into the engine. इस तरह C-130 के इंजन की फ्यूल नोजल्स को सर्विस किया जाता है। सर्विस क्यों किया जाता है कि उनका स्प्रे पैटर्न जो है वो खराब हो जाता है, यानी कि जो एक्सपेक्टेडली एक मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एक स्प्रे पैटर्न बनना चाहिए वो नहीं बनता। पहले क्या किया जाता था कि जब फ्यूल नोजल स्प्रे, मैं आपको पिक्चर्स भी किसी दिखा दूंगा, की जाती हैं तो उनको किसी एक जगह पे फिक्स करके उसके ऊपर से फ्यूल फेंका जाता था और एक ह्यूमन बीइंग देखता था कि क्या इसका पैटर्न सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब वो ह्यूमन आई जो है अंदर से कोई चीज मिस कर सकती है, मतलब उसको बड़ा क्लियरली शायद वो ओमिट कर सकती है, which ultimately would result into a loss of huge money which was invested on that aeroplane. So we suggested them a system जिसके अंदर उसी तरह वो नोजल लगेगी, उसी के अंदर फ्यूल आएगा, बट दिस टाइम एक कैमरा कैप्चर कर रहा है उन पिक्चर्स को, फिर उसको एनहांस करके देख रहा है, और जहां पे उसको कोई उसके अंदर स्ट्रीक या मिसिंग एरिया नजर आता है वो उसको इंडिकेट कर देता है कि इसकी सर्विस होने वाली है। प्लस वो उस नोजल के ऊपर लिखे गए अल्फान्यूमेरिक कोड जो उस नोजल की पहचान है उसको डिजिटाइज करके एक एक्सेल की शीट में रख लेता था कि ये फ्यूल नोजल कितनी दफा स्प्रे हो चुकी, कितनी दफा सर्विस हो चुकी, ताकि जब इसकी लाइफ पूरी हो जाए तो इसको यूज ना किया जा सके। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये हमारे सोचने की बात है और अप्लाई करने की बात है। इस वक्त हमारे यहाँ पे, हमारे मुल्क के अंदर जितनी एप्लीकेशन की जरूरत है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, बेतहाशा काम अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं। So since we are near to the end of this lecture, so I will go through all these examples of computer tomography, ultrasound imaging, जिसके अंदर एक ह्यूमन फीटस के बारे में इंफॉर्मेशन जिसको डॉक्टर्स एनालाइज करते हैं, प्लस एमआरआई के डिफरेंट स्लाइसेस। अब जो एमआरआई के स्लाइसेस होते हैं ये 3 डिफरेंट व्यूज में हो सकते हैं। या तो टॉप व्यू है, आप टॉप से किसी ह्यूमन ऑर्गन को देखते हैं, या साइड व्यू है, या फ्रंट व्यू है। तो इस डायरेक्शन से भी आ सकता है, इस डायरेक्शन से तस्वीर ली जा सकती है, और टॉप से भी तस्वीर किसी भी ऑब्जेक्ट की ली जा सकती है। और ये बिल्कुल शुरू के स्लाइड्स हैं, मतलब कि आप बेसिकली किसी भी ह्यूमन ऑब्जेक्ट जिसकी एमआरआई ले रहे हैं आप उसके स्लाइसेस बना रहे हैं, और यू कैन इवन सी डीप विद इन दैट ऑर्गन के वहां पे इशू क्या हुआ है। सो दिस इज द फैसिलिटी दैट एमआरआई इज गिविंग अस। JPEG से आप सारे वाकिफ हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि ये बेसिकली कंप्रेशन के स्टैंडर्ड है। ये ओरिजिनल इमेज है और ये इसका कंप्रेस्ड वर्जन है जिसने इसको 27 गुना कम कर दिया है। और ऐसा ही होता है, हमारे नॉर्मली रॉ इमेज बहुत ह्यूज होते हैं। अगर रॉ इमेज सेव करना शुरू कर दें मोबाइल वगैरह के अंदर तो शायद हम बहुत ज्यादा पिक्चर्स ना सेव कर सकें, तो हमेशा हम कंप्रेस्ड इमेजेस सेव करते हैं, और ये JPEG स्टैंडर्ड है। इसके बाद नया स्टैंडर्ड आया जो कि JPEG 2000 है। स्टिल ये 27 गुना कंप्रेस करता है, बट इसके अंदर अगर हम प्रीवियस में देखें तो प्रीवियस के अंदर हमें बड़ा क्लियरली लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन फील होता है इस इमेज के अंदर ड्यू टू कंप्रेशन। JPEG 2000 स्टिल उतने गुना कंप्रेशन कर रहा है, लेकिन जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको इसने कम कर दिया एज कंपेयर टू JPEG स्टैंडर्ड। तो इस वक्त जो आप नए इमेजेस जितने हमारे JPEG में सेव हो रहे हैं वो एक्चुअली JPEG 2000 स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। फेशियल डिटेक्शन हम सबको आइडिया है, हमारे मोबाइल कैमरास में होती है। इसके बाद एक एग्जांपल है जिसके अंदर ये फेस ट्रैकिंग है, जिसके अंदर आप यहाँ तक बता सकते हैं कि सामने बैठा हुआ शख्स एक मेल है, फीमेल है, वो अपना चेहरा रोटेट कर रहा है, वो स्माइल कर रहा है, वो फ्रॉन कर रहा है, उसका कैमरे की तरफ को चेहरा सीधा है, साइड पे है, उसने ग्लासेस पहने हुए हैं, नहीं पहने हुए, और तमाम चीज़ें डिटेक्ट की जा सकती हैं। फिर इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग जो कि आखिरी चीज़, फेस मॉर्फिंग, कि आप एक फेस को दूसरे फेस में बदल लें। ऐसी एप्लीकेशंस इमेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस कहलाती हैं।
या आप किसी बंदे की बारे में जानना चाहते हैं कि वो किसी एक खास टाइम पे कैसा लग रहा था। एक फ्यूजिटिव है जिसके पास आपके पास उसकी बचपन की तस्वीर है, और आपने आजकल वो देखा होगा जो खुदा ना एक बड़ा बुरा वाकया हुआ है और उस बंदे की जो तस्वीरें अब तशहीर की जा रही है, उसके अंदर उसके बाल हटा के उसकी डिफरेंट वो कंडीशन, वो सारे सिमुलेटेड है। वो सिमुलेटेड फेसेस हैं कि वो इस किस्म का दिख सकता है इस वक्त, जिसको वो ढूंढने जा रहे हैं। सो विद दिस आई एंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और कल को इंशाल्लाह हम इस लेक्चर से ऑनवर्ड चल जाएंगे। और कल आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो क्लास के स्टार्ट में आप बता दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।